ہم بھی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں لیکن کبھی قطرہ نہیں ٹپکتا، تو گویا ہمارا دل سخت ہوتے جا رہا ہے، ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہوتے جا رہا ہے۔ اگر آج میں رشوت لے رہا ہوں، انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ اچھا، اس کا اینڈ جہنم ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر ہماری کسی بہن کا نکاح ہو جاتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال اگر اولاد نہ ہونا تو اس بچی کو تنگ 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 کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام کا اولاد لیٹ سے ہوئی لیکن آپ صبر کرتے رہے ماشاءاللہ۔ لوگوں، جو تم قربانی دیتے ہو وہ قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچنے والا ہے، نہ خون اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والا ہے، بلکہ تمہارا تقوی، تمہارے دل کی کیفیت اللہ کو پہنچنے والی ہے۔ ہمارے ماں باپ، بھائی، بچے سب مل کر ایک کمرے میں رہتے تھے، آج 3 4 کمرے والے گھر اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہوائی چپل میں پھرتے تھے، آج ہم جوتوں میں پھر رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ سائیکل میں جاتے تھے لیکن آج ہم لوگ گاڑی پہ پھر رہے ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں۔ اور ہمارے ماں باپ جب جو ہے کرتا پھٹتا تھا تو ہاتھ سے سلا کر وہ پہنتے تھے، لیکن کیا آج ہم کرتا پھٹنے کی صورت میں، شرٹ پھٹنے کی صورت میں سلا کر پہنتے ہیں؟ نہیں، پھینک دیتے ہیں اس کو۔ ہمارے ماں باپ پائبند لگاتے تھے کپڑوں کو، لیکن آج کوئی بھی جنریشن میں پائبند لگا کر کپڑے پہننے والا نہیں۔ ہم بچپن میں اگر پینٹ اگر ٹائٹ ہو جاتی نا، پیچھے سے کھول کے اس کو لوز کیا کرتے تھے، لیکن آج پینٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے، کوئی لوز کرنے والا ہے؟ پھینک دیتا ہے، نئی پینٹ خرید کر لے کر آتا ہے۔ نیچے سے اگر پینٹ اونچی ہو جائے تو کھول کے اس کو لمبی کرتے تھے، لیکن آج کوئی پینٹ نیچے سے کھول کر لمبی کرنے والا ہے؟ نہیں، نکال کے پھینک دیتا ہے، دوسری پینٹ لے کر آتا ہے۔ تو گویا اللہ نے ہم کو پہلے سے بیٹر رکھا ہے۔ اللہ کی بڑائی، بزرگی، پاکی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے آج ہمیں اس میدان میں جمع ہو کر رب العالمین کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور ہم اس بات کی توفیق عطا کرنے والا ہے کہ ہم واپس لوٹ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے دربار میں قربانی پیش کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ لوگو، جو تم قربانی دیتے ہو وہ قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچنے والا ہے، نہ خون اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والا ہے، بلکہ تمہارا تقوی، تمہارے دل کی کیفیت اللہ کو پہنچنے والی ہے۔ اس سنت پر ہم لوگ انشاءاللہ نماز کے بعد عمل پیرا ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہم لوگ جب کبھی بقرعید کا موقع آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں۔ ہم آج کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو بڑے بڑے خوبیاں تھے، جو کوالٹیز تھے، وہ کوالٹیز بھی ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی کوالٹی اخلاص تھا، یعنی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہی ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ تو آج بھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے دلوں میں ہونا، ہمارے من میں ہونا کہ ہمارے اس کام سے اللہ خوش ہو جائے۔ اگر آج ہم قربانی دے رہے ہیں تو ہمارا مقصد لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ ہم نے 2 بکرے دیے، 4 بکرے دیے، 6 بکرے دیے۔ ہم لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ ہم نے 80,000 کا جانور قربان کیا، ہم نے 120 کا جو ہے جانور قربان کیا، ہم نے 7 جو ہے بڑے جانور قربان کیے، ہم نے اونٹ ذبح کیا۔ گاؤں میں کوئی اونٹ نہیں کیا تھا لیکن ہم نے اونٹ ذبح کیا۔ گاؤں میں اتنا بڑا جانور کوئی بھی نہیں لایا تھا، ہم لے کر آئے۔ یہ خیال کبھی بھی دل میں نہیں آنا ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہم تعاون کر رہے ہیں اللہ خوش ہو جائے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ خوش ہو جائے، اگر ہم ہیلپ کر رہے ہیں اللہ خوش ہو جائے، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اللہ خوش ہو جائے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ خوش ہو جائے، ہم صدقہ کر رہے ہیں اللہ خوش ہو جائے، ہم کسی کا بھی تعاون کر رہے ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا، اس کا مقصد اللہ خوش ہو جائے۔ یہ سب سے پہلی بات ہماری زندگی میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے بڑے وفادار تھے اللہ کے، وفادار تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیویوں کے، وفادار تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے، وفادار تھے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے، ملت کے، ماں باپ کے، وفادار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو آج ہمیں بھی وفادار بننے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ہمیں وفادار بننا ہوگا
नबी के, हमें वफादार बनना होगा अपने माँ बाप के, हमें वफादार बनना होगा अपनी बीवियों के, हमें वफादार बनना होगा अपने बच्चों के, हमें वफादार बनना होगा अपने दोस्तों के, हमें वफादार बनना होगा अपने पड़ोसियों के, हमें वफादार बनना होगा अपने कस्टमर से, हमें वफादार बनना होगा अपने मालिक से, हमें वफादार बनना होगा अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सबसे हमें वफादार बनना होगा। आज हमारी वफादारी पैसों से जुड़ी हुई है, आज हमारी वफादारी हमारे फायदे से जुड़ी हुई है। अगर किसी से मुझे फायदा होता है तो वहां वफादारी का ढोंग करते हैं हम। अगर किसी से नुकसान हो जाए और किसी का काम हमारे मर्जी के खिलाफ हो जाए, अगर किसी का रवैया हमारे मर्जी के खिलाफ हो जाए, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है, कारोबार खत्म हो जाता है, ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। वो सब के सब झूठे मफाद से जुड़े हुए रहते हैं। हमारी वफादारी अल्लाह की खातिर, ये बंदा अल्लाह का नेक बंदा इसलिए मैं उससे वफादार हूं। वफादार इसलिए नहीं कि मुझे पैसे देता है, मुझे जो है कर्जा देता है, मुझे खिलाता, मुझे पिलाता, ये वफादारी नहीं। अल्लाह की खातिर हमारी वफादारी होना चाहिए। मैं वफादार हूं रब का, मैं वफादार हूं अपने बीवी बच्चों का, वफादार हूं अपने दोस्तों का, वफादार हूं अपने माँ बाप का। आज हमारी जिंदगी में वफादारी लाना होगा। बेवफाई तो दुनिया कर रही है। आज दो दोस्त का बेवफा है, आज अपने कस्टमर अपने मालिक का बेवफा है। आज जो है कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो वफादारी नहीं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कोई वफादार नहीं, कोई किसी का काम कर रहा है कोई वफादार नहीं। बस मफाद की खातिर हम लोग जुड़ते हैं, जबकि हमारा मफाद अल्लाह खुश करना ये होना चाहिए। पहली बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फिर कहा, शाकिरन लिअनउमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अता करदा नेमतों के बहुत बड़े शुक्रगुजार थे। तो हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। क्यों? अल्लाह ने पहले के मुकाबले में आज हमको अच्छा ही रखा है। 15 साल पहले देखो आप, 20 साल पहले देखो आप, 30 साल पहले देखो आप, हमारे माँ बाप एक असबस्तास के मकान में रहते थे, लेकिन आज हम आरसीसी के मकान में रहते हैं। हमारे माँ बाप भाई बच्चे सब मिलकर एक कमरे में रहते थे, आज 3-3 4-4 कमरे वाले घर अल्लाह ने हमको अता कर रखा है। हमारे माँ बाप हवाई चप्पल में फिरते थे, आज हम जूतों में फिर रहे हैं। हमारे माँ बाप साइकिल में जाते थे, लेकिन आज हम लोग गाड़ी पे फिर रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं। हमारे माँ बाप को नसीब नहीं था वो कपड़ा महीने में एक बार पहनना, रमजान में बकरीद में नए कपड़े सिलाते थे, लेकिन आज हम लोग उसके लिए कोई दिन नहीं है, हम जब चाहे नए कपड़े सिला सकते हैं। अल्लाह ने जैसे हमारे माँ बाप को रखा था उससे बेहतरी रखा है। तो ऐसे मौके पर हमारा फर्ज बनता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ में जिंदगी गुजर जाती थी, और हमारे माँ बाप जब जो है कुर्ता फटता था तो हाथ से सिलाकर वो पहनते थे, लेकिन क्या आज हम कुर्ता फटने की सूरत में, शर्ट फटने की सूरत में सिलाकर पहनते हैं? नहीं, फेंक देते हैं उसको। हमारे माँ बाप पैबंद लगाते थे कपड़ों को, लेकिन आज कोई भी जनरेशन में पैबंद लगाकर कपड़े पहनने वाला नहीं। हम बचपन में अगर पैंट अगर टाइट हो जाती ना, पीछे से खोल के उसको लूज किया करते थे, लेकिन आज पैंट टाइट हो तो कोई लूज करने वाला है? फेंक देता है, नई पैंट खरीद कर लेकर आता है। नीचे से अगर पैंट ऊंची हो जाए तो खोल के उसको लंबी करते थे, लेकिन आज कोई पैंट नीचे से खोलकर लंबी करने वाला है? नहीं, निकाल के फेंक देता है, दूसरी पैंट लेकर आता है। तो गोया अल्लाह ने हमको पहले से बेटर रखा है, अल्लाह ने हमको पहले से बहुत अच्छा रखा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र मतलब जबान से अल्लाह तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया खाली जबान से बोलते रहना नहीं है, बल्कि जो अल्लाह दे रखा है सही यूज करना। अगर मुझे गाड़ी दिया है तो गाड़ी को सही यूज करना, माल दिया है तो माल को सही यूज करना, दौलत दिया दौलत को सही यूज करना, अगर पावर दिया है तो पावर को सही यूज करना, जायज इस्तेमाल करना, हराम जगह इस्तेमाल नहीं करना। अगर मुझे जो है अथॉरिटी मिली है उस अथॉरिटी को मिस यूज नहीं करना, सही यूज करना। अगर अल्लाह हुस्न दिया है तो सही इस्तेमाल करना, अगर अल्लाह ने ओहदा दिया तो सही इस्तेमाल करना, अगर अल्लाह ने घर दिया तो सही इस्तेमाल करना, अगर अल्लाह ने कार दिया तो सही इस्तेमाल करना। जो भी अल्लाह हमको
कारोबार की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, माल की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, घर की शक्ल में जो दे रखा है ना, उसको सही यूज करना, या अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मिस यूज करना नाशुक्री करना है। गुनाह के काम में लगाना नाशुक्री है। गुनाह करना नाशुक्री है। इससे हमें बचना होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इखलास वाले थे, हमें भी इखलास पैदा करना होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफादार थे, हमें भी वफादार बनना होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार थे, हमें भी शुक्रगुजार बनना होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा, इन्ना इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात में उठकर रो रो के दुआएं करने वाले थे। अपने दुख को, दर्द को अल्लाह को सुनाने वाले थे। आज हमें भी दुख होता है, आज हमें भी तकलीफ होती है, आज हमें भी जो है प्रॉब्लम्स आते हैं, आज हमें मुश्किलात आते हैं, तो हम लोगों से शेयर करते रहते हैं, दोस्त अहबाब को सुनाते रहते हैं, और जो है पड़ोसी को सुनाते रहते हैं। जबकि इब्राहिम किसको सुनाते थे? रो रो के अल्लाह को सुनाया करते थे। आज हमारे घर में मुश्किल है, रो के अल्लाह से दुआ करना होगा। आज अगर मेरे कारोबार में प्रॉब्लम है, रो के अल्लाह से दुआ करना होगा। आज अगर रिश्ता टूट रहा है, रो कर अल्लाह से दुआ करना होगा। आज अगर बीमारी है, शिफा नहीं मिल रही है, रो कर अल्लाह से दुआ करना होगा। तो रो कर दुआ करने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। हम भी दुआएं करते हैं लेकिन हमारी आंखें नम नहीं होती। हम भी दुआएं करते हैं लेकिन कभी कतरा नहीं टपकता। तो गोया हमारा दिल सख्त होते जा रहा है, हमारा दिल गुनाहों की वजह से सख्त होते जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीम, बुर्दबार थे। बुर्दबार का मतलब कोई भी काम करना हो उसके अंजाम को देखना है। अगर आज मैं रिश्वत ले रहा हूं, अंजाम क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने कहा, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, देने वाला दोनों जहन्नम में जाने वाले हैं। अच्छा, इसका एंड जहन्नम है। स्टॉप, रिश्वत लेना छोड़ देना होगा। आज अगर मैं बदकारी कर रहा हूं तो अंजाम जहन्नम है, यहीं से रुक जाना होगा। आज मैं सदका कर रहा हूं तो अंजाम जन्नत है, हाँ सदका शुरू करना होगा। आज अगर मैं गाली देता हूं, एंड नुकसान है, रुक जाना होगा। आज अगर मैं चोरी कर रहा हूं, किसी के ऑफिस में चोरी कर रहा हूं, किसी के इदारे में चोरी कर रहा हूं, किसी की फैक्ट्री में चोरी कर रहा हूं, एंड क्या होने वाला है? जहन्नम। तो लिहाजा उसको उसी वक्त रोकना होगा। जो मैं कर रहा हूं उसका अंजाम क्या होगा? जो मैं आज कर रहा हूं उसका एंड क्या होगा? एंड अगर फायदामंद है तो फिर आप काम करें। एंड से अल्लाह राजी होता है, काम करें। एंड से अल्लाह नाराज हो जाता है, उससे रुक जाओ, उसको हलीम कहा जाता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा देखो आप क्या दुआ कर रहे हैं, वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह, मेरी आने वाली नस्ल को, मेरी आने वाली औलाद को ऐसी रोजी अता फरमा जिससे वो शुक्रगुजार बंदे बने। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को हलाल रोजी अता फरमा। क्यों? हलाल रोजी खाने वाला शुक्रगुजार बनता है, हराम रोजी खाने वाला शुक्रगुजार कभी नहीं बन सकता है। तो ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को ऐसी तालीम दिला दे जिससे हलाल रोजी कमा सके। अल्लाह मेरी औलाद को ऐसा हुनर सिखा दे जिससे हलाल रोजी कमा सके। अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा उहदा दे जिससे हलाल रोजी कमा सके। अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बिजनेस दे हलाल रोजी कमा सके। हलाल रोजी पर अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज भी हमें अपनी औलाद के लिए हलाल रास्ते पैदा करना होगा। अगर हम तालीम दे रहे हैं, ऐसी तालीम दो आगे चलकर हलाल नौकरी मिल सके, हलाल कारोबार कर सके, हराम कारोबार से बच सके, हराम बिजनेस से बच सके। ऐसे कारोबार को अपने बच्चों को तालीम देना होगा। जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें सिखाती है, वह आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी हमें सिखाती है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम जिंदगी में 70 साल तक औलाद नहीं हुई, फिर भी सब्र करे माशाअल्लाह। 70 साल औलाद नहीं हुई तो भी सब्र करे। तो आज के जमाने में अगर हमारी किसी बहन का निकाह हो जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल अगर औलाद ना होना, तो उस बच्ची को तंग 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 करके छोड़ देते हैं। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, इतना तंग करते हैं बच्ची को कि वो बच्ची आगे किसी महफिल में जाने से रुक जाती है,
किसी फंक्शन में जाने से डरती है। अगर मैं फंक्शन में जाऊंगी फिर लोग मुझे पूछेंगे कुछ हुआ क्या, मैं शादी में जाऊंगी लोग फिर मुझे पूछेंगे, मैं वहां मिलने जाऊंगी लोग मुझे पूछेंगे, घर में कोई मुलाकात करना फिर लोग मुझे पूछेंगे। यानी अगर किसी को औलाद होने में लेट हो जाता है ना, लोग उसको तंग कर देते हैं, लोग उसको परेशान कर देते हैं। इधर डॉक्टर उधर डॉक्टर, वो स्कैनिंग ये स्कैनिंग, वहां जाओ यहाँ जाओ, वो बाबा ये बाबा, वो तावीज ये तावीज, यानी उस लड़की को तंग करके छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त, यहां पर हजरत सारा अलैहिस्सलाम का औलाद लेट से हुई, लेकिन आप सब्र करते रहे माशाअल्लाह। हजरत सारा अलैहिस्सलाम अपने शौहर के साथ कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में कभी उस में फिर रहे हैं। तो गोया हजरत सारा अलैहिस्सलाम अपने शौहर के मुकम्मल वफादार हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इब्राहिम कितना फिरते हो यार, छोड़ दो बस यहीं पर रह के जिंदगी गुजारेंगे, नहीं। जहां इब्राहिम जाते हैं साथ में जा रहे हैं। तकलीफ को बर्दाश्त किया और तकलीफ को बर्दाश्त करते करते अपने शौहर के साथ रही माशाअल्लाह। इब हजरत सारा अलैहिस्सलाम मिस्र में जाती हैं, वहां का बादशाह बुराई करना चाहता है, बदकारी करना चाहता है हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ। तो हजरत सारा ने ऑन द स्पॉट 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ की अल्लाह से, वो बादशाह जमीन पर गिरकर तड़पने लग जाता है, बादशाह जमीन पर गिरकर तड़पने लग जाता है। तो गोया एक नेक औरत बुराई से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करती है माशाअल्लाह, गुनाह से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करती है और अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो अगर कोई आदमी अगर कोई औरत बुराई से बचना चाहते हैं, अल्लाह उसको जरूर बचा लेता है बुराई से। अगर बुराई से बचने की दुआ करते हैं, अल्लाह जरूर बचा लेता है उसको, जो है बुराई से, हर तरह के नुकसान से अल्लाह बचा लेता है अगर हम दुआ करने वाले बने। क्यों? हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह उनको बचा लिया था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद अता फरमाया, और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम कौन है ये? वो बादशाह जो बुराई करना चाहता था, एक बार करा तड़पने लगा, फिर दुआ करे अच्छा हुआ, फिर बुराई करना चाहा दुआ करे तड़पने लगा, 3 बार ऐसा नाकाम हुआ। तो हजरत हाजरा को जो उसके खादिमा थी, नौकरानी थी, कहा सारा तुम जिन लगती हो, तुम इंसान लगती हो, ये ले जाओ तुम खादिमा को, तुम यहां से निकल जाओ। तो वो बादशाह हजरत सारा अलैहिस्सलाम को भेज दिया अपने कंट्री से, एक खादिमा को देकर, नौकरानी को देकर, और वो नौकरानी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थी। वो नौकरानी आपके ईमान को देकर, अखलाक को देकर, हुस्न सुलूक को देकर ईमान लेकर आई माशाअल्लाह। और ईमान लाने के बाद हजरत सारा ने मशवरा दिया अपने शौहर को, इब्राहिम आप औलाद 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 के तड़प रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह औलाद नहीं हो रही है, तो हो सकता हाजरा से अल्लाह औलाद करेगा, तुम हाजरा से निकाह करो। बीवी ने हजरत हाजरा का निकाह अपने शौहर से कराया। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, सहरा में छोड़ दिया, सब्र किया, शौहर शिकवा नहीं क्या किया, खाना नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं, लोग नहीं, छांव नहीं, झाड़ नहीं, कुआं नहीं, बस्ती नहीं, कुछ नहीं, यहां छोड़कर जा रहे हैं आप। कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा जब अल्लाह का हुक्म है तो मुझे नुकसान होने वाला नहीं, जाओ आप वापस चले जाओ। कितने साबिरा थे, कितनी हिम्मत वाली खातून थी माशाअल्लाह, कितनी बहादुर खातून थी, कितनी वफादार खातून थी कि अकेले बच्चे को लेकर सहरा में रह रही है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इब्राहिम वापस लौट कर आ रहे हैं, और आते भी हैं तो इस्माइल से कह रहे हैं कि इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब्बो आपको जो करना है कर लीजिए, मैं सब्र करूंगा। अरे वो बच्चा जो पहली मर्तबा बाप को देख रहा है, फर्स्ट टाइम बाप को देख रहा होश हवास में, और वो बाप अगर कह रहा कि मैं ज़बह करने वाला हूं, तब भी बच्चा कहता कि अब्बू जान आपको जो चाहे करो, मैं सब्र करने वाले में से हूंगा। तो मां ने तरबियत की थी। वो जमाने में न मदरसा था, न स्कूल थी, न ट्यूशन था, न आलिम थे, न फाजिल थे, कुछ नहीं था। मां ने अकेले अपने बच्चे की तरबियत की माशाअल्लाह। तो ये तरबियत का असर था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल जिंदगी हमको नजर आ रहा है, और उन्हीं के सुन्नत पर अमल करने के लिए हम लोग ईद मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं, जानवरी कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश, यही हमारा मकसद है माशाअल्लाह।